ایران سے جنگ میں ناکامی، اربوں ڈالرز کا نقصان اپنے ہی عوام کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد ٹرمپ ہوش گنوا بیٹھے۔ جب کچھ نہ کر پائے تو گالیوں پر اتر آئے۔ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ایران کو پھر دھمکی، کہا کہ آبنائے ہرمز نہ کھولی، زندگی جہنم بنائی جائے گی۔ منگل کو ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر قیامت ڈھائی جائے گی۔ گالیوں کا استعمال ٹرمپ کی بے بسی، ناکامی اور شکست کا اعتراف ہے۔ بوکلائے ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہونے کا بھی دعویٰ۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ ایران معاہدے کے لیے امریکہ سے مذاکرات کر رہا ہے، کل تک ایران کے ساتھ معاہدہ ہونے کا امکان ہے۔ ایران کے خلاف غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے پر پاکستان میں ایرانی سفارتخانے کا ٹرمپ کے مواخذے کا مطالبہ۔ ایرانی سفارتخانے نے بیان میں کہا ٹرمپ کو غیر متوازن رویے، نااہلی کے باعث عہدے سے ہٹایا جائے۔ ذمہ داری کانگریس، ووٹرز اور امریکی کابینہ پر عائد ہوتی ہے جس نے ٹرمپ کو منتخب کیا۔ 25ویں آئینی ترمیم کا نافذ نہ ہونا، امریکی کابینہ غداری کی مرتکب ہو رہی ہے۔ ٹرمپ کا امریکی پائلٹ ملنے کا دعویٰ، چند گھنٹوں میں امریکی فوج نے تاریخ کا سب سے جرأت مندانہ ریسکیو آپریشن کیا۔ ایران کے پہاڑوں میں پھنسے امریکی آفیسر کو بحفاظت نکالا گیا۔ امریکی آفیسر کرنل بھی ہے۔ دونوں آپریشنز بغیر کسی امریکی کی ہلاکت یا زخمی ہوئے بغیر مکمل کیے، جو اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ہم نے ایرانی فضاؤں پر مکمل فضائی برتری حاصل کر لی ہے۔ ایرانی فوج کے کئی لیڈرز کو ختم کرنے کا بھی دعویٰ۔ امریکہ کو ایران میں اپنے پائلٹ کی تلاش کا مشن مہنگا پڑ گیا۔ ایک اور امریکی جنگی طیارہ تباہ۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ امریکی C-130 طیارہ جنوبی اصفہان میں گر کر تباہ ہوا۔ ایران نے گرائے گئے طیارے کے ملبے کی تصاویر جاری کر دیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی پولیس نے جنوبی اصفہان میں امریکی C-130 طیارے کو فائرنگ کر کے مار گرایا۔ تباہ کیا گیا طیارہ امریکی پائلٹ کی تلاش میں آئے فوجی طیاروں کو ایندھن فراہم کر رہا تھا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے بکھرے طیارے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ نے ایسی 3 اور فتوحات حاصل کر لی تو وہ بالکل تباہ ہو جائے گا۔ ایران نے امریکی فوج کے 2 C-130 اور 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز مار گرائے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں کہ امریکہ کو پائلٹ کی تلاش کے مشن میں تبس آپریشن جیسی ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس اقدام نے امریکی فوج کی مسلسل ناکامیوں میں مزید اضافہ کیا۔ واضح ہو گیا کہ امریکی فوج اس جنگ میں برتری حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ امریکی صدر گھبراہٹ کا شکار ہو کر نفسیاتی جنگ اور بیانات کے ذریعے اپنی پوزیشن بہتر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ماضی کی طرح صرف دعوے کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے ٹرمپ کو پاگل قرار دے دیا۔ IAEA کے سابق ڈائریکٹر کی ٹرمپ کے 48 گھنٹے کے الٹیمیٹم پر خلیج اور اقوام متحدہ سے فوری مداخلت کی اپیل۔ IAEA کے سابق ڈائریکٹر جنرل محمد البرادی نے کہا کہ برائے کرم ایک بار پھر اپنی بساط کے مطابق سب کچھ کریں، اس سے پہلے کہ یہ پاگل شخص اس خطے کو آگ کے گولے میں بدل دے۔ اس پاگل پن کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ بڑی تو خطہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے دوزخ بن جائے گا۔ ٹرمپ کے 48 گھنٹے کے الٹیمیٹم پر ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو انتباہ۔ ایرانی مسلح افواج کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے اپنے بیان میں کہا کہ کسی بھی نئی جارحیت کا جواب صرف محدود نہیں ہوگا بلکہ پورے خطے میں سخت اور وسیع رد عمل سامنے آئے گا۔ ایران کو زیر کرنے کا خواب اب مخالفین کے لیے خوفناک دلدل بنتا جا رہا ہے جہاں وہ خود پھنس سکتے ہیں۔ امریکی اور صہیونی فوج کے ایران پر حملے جاری۔ اسرائیل کا ایک بار پھر بوشہر جوہری پاور پلانٹ پر حملہ، میزائل لگنے سے عمارتوں کو جزوی نقصان، مرکزی تنصیبات محفوظ رہیں۔ حملے میں ایک شہری شہید۔ صوبہ خوزستان میں ماہ شہر اسپیشل پیٹرو کیمیکل زون کو نشانہ بنایا گیا۔ پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کے کچھ سیکشنز متاثر ہوئے، 5 افراد شہید، 170 کمی۔ صوبہ ہرمزگان میں بندر خمیر سیمنٹ فیکٹری پر بھی حملہ کیا گیا۔ امریکہ نے ایران کا شاہکار اسپورٹس اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا۔ اس اسٹیڈیم میں تاریخ ساز میچز ہوا کرتے تھے۔ جوہری پلانٹ سے تابکاری کے اخراج ایران اور خلیجی ممالک میں زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔
ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इंतबाह ईरान के बुशहर जौहरी प्लांट के करीब मुसलसल हमलों के बाद अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया। ईरानी मंदूब का भी अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त इरसाल लिखा है कि अमरीकी और इजरायली हमले जंगी जराइम हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान में बिजली, पानी, तवानाई और दीगर सिविल तंसीबात पर हमले जंगी जराइम हैं। हमलों का मकसद शहरी आबादी में खौफ और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाना है। पत्थर के ज़माने की अमरीकी धमकी ईरानी कौम से खुली दुश्मनी करार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर मुसल्लत की गई इस जंग का मकसद ईरान की तबाही है। स्कूलों, अस्पतालों पर हमलों से जंगी नौयत ज़ाहिर हो गई। ट्रंप के मुशीरों के नज़दीक ईरान में आम तबाही और खून खराबा जायज़। अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सदर ने आला मोमिनीन का कहना है कि ईरान के हथियारों के प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए ईरान की सड़कों, पुलों, पावर प्लांट्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना ज़रूरी है। आला मोमिनीन ने हालिया दिनों में निजी तौर पर सदर ट्रंप के सामने ये केस पेश किया है कि ईरान की बिजली पैदा करने वाली तंसीबात और पुल जायज़ फौजी अहदाफ हैं, क्योंकि उन्हें तबाह करने से ईरान के मिसाइल्स और जौहरी प्रोग्राम मुतासर हो सकते हैं। फ्रांसीसी जनरल का अमरीकी फौजी जनरल्स को मीटिंग्स के दौरान कोकेन का नशा न करने का मशवरा। बरतानवी अखबार के मुताबिक फ्रांसीसी जनरल माइकल यकोलोफ से अमरीका के ईरान यूरेनियम पर कब्जे के लिए मुमकिना ऑपरेशन पर सवाल किया गया। फ्रेंच जनरल ने कहा अगर जंगी मंसूबा बंदी करने वाले आला फौजी अफसरान उनके सामने की तजवीज़ इन अल्फाज में रखेंगे कि ये बड़ा अजीम मंसूबा है तो वो जवाब में कहेंगे कि मीटिंग के दौरान कोकेन सूंघना बंद कर दें। ईरान को ऑपरेशन वादा सादुक चहारुम की 96वीं लहर या रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा के मुक़द्दस कोड नाम से शहीद लड़कियों के लिए वक्फ। हाइफा में इसराइली लड़ाका तैयार को ईंधन फराहम करने वाली बड़ी रिफाइनरी पर हमला। अमारात की हमशान गैस तंसीबात और एल रॉयस के इलाके में अमरीकी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर निशाना बनाया। बहरीन में सीत्रा पेट्रो कॉम्प्लेक्स और कुवैत के शीबा पेट्रो कॉम्प्लेक्स पर भी हमले। बड़ी तबाही। कुवैत में वजारत तेल और वजारत मालियात के दफातर और बिजली के पैदावारी यूनिट्स पर ड्रोन हमलों से तबाही। रूसी मीडिया ने वजारत मालियात के दफ्तर में नुकसान की वीडियो जारी कर दी। कुवैती वजारत पानी और बिजली के मुताबिक ईरान के ड्रोन हमलों में बिजली घरों और डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया। हमलों के बाद बिजली पैदावार के 2 यूनिट्स बंद कर दिए गए। अमरीकी फौज में रिजीम चेंज के सवाल पर वजीर जंग लाजवाब। ऐवान की समात में फौजी ओहदेदारों को हटाए जाने की वजह के सवाल पर पैट हेग्सेथ गोल मोल जवाब देने की कोशिशें करते रहे। वजीर जंग पैट हेग्सेथ से सवाल किया गया आपने कितने जनरल्स और एडमिरल्स को बरतरफ किया, जिस पर उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। सवाल करने वाले ने उन्हें बताया कि बरतरफ फौजी ओहदेदारों की तादाद 8 है। आप वजाहत कर सकते हैं कि उनमें से किसको क्यों बरतरफ किया गया, आर्मी जनरल्स को क्यों हटाया गया। अमरीकी वजीर जंग गोल मोल जवाब देते रहे। बमबारी नहीं बात करो, ना खत्म होने वाली जंग बंद करो। इसराइलियों का मुतालबा। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी के बावजूद सैकड़ों इसराइली ईरान जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी रैली में शिरकत की। नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का ईरान, लेबनान, गजा में जंग और मगरबी किनारे में मुनज़्ज़म तशद्दुद रोकने का भी मुतालबा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफगान तालिबान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर अपने पैगाम में ऑपरेशन गज़ब लिल हक की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। बताया कि अब तक अफगान तालिबान रजीम के 796 कारिंदे हलाक और 1043 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। दुश्मन की 286 चेक पोस्टें तबाह कर दी गई हैं। 44 चेक पोस्टों पर कब्जा भी कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोयटा में कार्रवाई का कदम। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का दहशतगर्द गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक दहशतगर्द हबीबुल्लाह लालू के नाम से कार्रवाइयां कर चुका है। दहशतगर्द पहले भी गिरफ्तार हो चुका और 2 FC एहलकारों की शहादत में मुलव्वस रहा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं कि मुल्क दुश्मन अनासिर साजिशों में मसरूफ हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी नहीं, जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसको जवाब देंगे।
पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी का निफाज। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही पेशरफ इजलास। सब्सिडी की फराहमी, मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुसाफिर बसों को 1 लाख और मिनी बस वैगनों को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए ट्रकों को 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम कर रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करवा दी, जो लायक तहसीन है। उम्मीद है बाकी सूबे भी पैकेज के लिए जल्द अज जल्द तयशुदा रकूम जमा करवाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स के जरिए अवाम को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। मुसाफिर बस, कोस्टर्स और स्कूल वैन्स के किराए नहीं बढ़ने देंगे। मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्टर्स के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रजिस्टर्ड बसों को विफाक के जरिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हुकूमत सिंध बसों के रूट्स और ईंधन के इस्तेमाल के हिसाब से ट्रांसपोर्टर्स की मदद करेगी। हुकूमत अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ईस्टर की तकरीब से खिताब किया और कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए काम जारी है। गरीब की मुश्किलात का इल्म है। मसीही बिरादरी ने क़याम पाकिस्तान और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए बहुत काम किया है। हुकूमत अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। मुल्क भर में तूफानी बारिशें। KPK के इलाके सवाबी और खैबर में बारिश के बाइस बोसीदा मकानात की छतें गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी। 25 मार्च से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 45 अफराद जाँ बहक और 105 जख्मी। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 23 बच्चे और 5 खवातीन शामिल हैं। पाराचनौर में दरियाए कुरम पर पुल से मुल्हिका सड़क पानी में बह गई। पाकपान शारा पर सैलाबी रेला गाड़ी बहा ले गया। बलूचिस्तान के शुमाली असला में बारिश और बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। योब किला के काकड़ खुरासा में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, मरी, सरगोदा, गुजरात, सियालकोट और गुजरावाला में तेज बारिश। मियावाली में कंडाल छुरावाला के मकाम पर दरियाए कुरम में तुखयानी। पानी मकानों में दाखिल। नारायण, सवात, बाबूसर टॉप और नागा पर्वत पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। कराची वाले एक और बारिश की तैयारी कर लें। कल और मंगल को कराची समेत सिंध में हल्की से मोतदिल बारिश की पेशगोई। शहर कायद में गरज चमक, आंधी और जालाबारी भी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात से जनूबी बलूचिस्तान में दाखिल होगा। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात सर पर हजारों तलबा ताहाल एडमिट कार्ड से महरूम। ज्वाइंट अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सिंध का इम्तिहानात को 1 हफ्ते के लिए मौखर करने का मुतालबा। हजारों स्कूल्स के लाखों तलबा और तालिबात के एडमिट कार्ड पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सके। वालिदैन, स्कूल्स और तलबा तालिबात सख्त जहनी खौफ का शिकार। सिंध प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कौंसिल ने भी इम्तिहानात 3 दिन आगे बढ़ाने की सिफारिश कर दी। मसीही बिरादरी आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईस्टर का मजहबी त्यौहार मना रही है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। सदर जरदारी कहते हैं कि वतन अजीज़ की तरक्की में पाकिस्तानी मसीही बिरादरी की काबिल कदर खिदमात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दुआगो हैं कि खुशियों का ये दिन मसीही बिरादरी हमारे मुल्क और दुनिया भर के लिए खुशहाली की नवीद लाए। वो वक्त दूर नहीं जब PSL दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की अहम बैठक। माली साल 2024-25 के ऑडिट शुदा मालियाती स्टेटमेंट्स की मंजूरी। ICC एंटी करप्शन कोड के मुताबिक प्रोसीजरल रूल्स की मंजूरी भी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL सरमाकारी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन चुकी है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के दिलचस्प मुकाबले जारी। आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स की टॉस जीतकर कोयटा ग्लैडिएटर्स को बल्लेबाजी की दावत। ग्लैडिएटर्स का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 167 रन का हदफ। मुल्तान सुल्तान्स की हदफ के ताक़ुब में बल्लेबाजी जारी। नेशनल स्टेडियम कराची में PSL सीजन 11 का मेला 8 अप्रैल से सजेगा। कराची में 22 मैचेस शेड्यूल। स्टेडियम में तैयारियां जारी। शायकीन को ताहाल स्टेडियम आने की इजाज़त ना मिल सकी।
اور نعتیہ قوالی میں نئی جدتیں متعارف کروانے والے غلام فرید صابری قوال کے مداح آج ان کی 32ویں برسی منا رہے ہیں۔ صابری برادران نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ وہ جب اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو سننے والوں پر گویا سحر طاری ہو جاتا تھا۔